میرے ساتھ جن کے پاس کتاب مقدس ہے، خدا کا بندہ پالوس رسول اپنے بڑے پیارے شاگرد تموتھیوس کے نام خط لکھتے ہوئے پہلا خط اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت کو ہم تلاوت کریں گے بڑے دھیان سے۔ ان باتوں کو سیکھنا، سننا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ 12ویں آیت، پہلا تموتھیوس پہلا باب اس کی 12ویں آیت۔ کے نام تموتھیوس کا پہلا خط پہلا باب 12ویں آیت۔ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ پاک کلام کے پڑھے ہوئے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آپ سب بیٹھے اس سے پہلے کہ ہم مزید کلام کو سیکھیں دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، ہم جو اپنی عقل سے تیرے کلام کو سمجھ نہیں سکتے، تیرا پاک روح جو اچھا استاد ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، بخش دے کہ ہم پاک روح کی ہدایت سے سیکھیں، عمل کریں، تاکہ آنے والے ہمیشہ کی زندگی کا تاج پانے والے بنے۔ ہم سب کی بڑی مدد، بڑی رہنمائی کریں۔ خدا باپ ہر ایک سوچ خیال پر تیرے بیٹے خدا بندی یسوع کا کنٹرول ہو۔ ابلیس کی دیکھی اندیکھی ساری کوٹیں، ساری شرارتیں یسوع کے نام سے رد ہو، تاکہ ہم تیرے کلام کو سنیں، عمل کریں اور 100، 60، 30 گنا پھل لانے والے بنے۔ یسوع مسیح ضرور ہے میں گھٹوں تو بڑھے، میں چھپوں تو دکھے، میں مروں تو جیے، تاکہ اس بدن سے جو روح القدس کا مقدس ہے تیرا جلال ظاہر ہو۔ ہم سب کی بڑی مدد، بڑی رہنمائی کا ہے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ سو میرے عزیزوں، ہم جب کلام خدا کو دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول جب اپنے پیارے شاگرد تموتھیوس کو خط لکھتا ہے تو اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت کے اندر کہتا ہے کہ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ سب میرے پیچھے کہیں گے، اپنی خدمت کے لیے کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہے، دیانت دار سمجھ کر۔ سب سے پہلی بات، خداوند یسوع مسیح نے جب بھی کلام کیا، آپ پالوس کے خط دیکھیں، یسوع مسیح کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دیکھیں تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں۔ خدا بیوقوفوں کو چنتا ضرور ہے، مگر پھر انہیں بیوقوف رہنے نہیں دیتا۔ پھر وہ کہتا ہے میں عقل مند جان کر تمہیں کیا کرتا ہوں، تم سے کلام کرتا ہوں، تاکہ تم سمجھو۔ عقل مند بندے کا کام ہوتا ہے کہ ہر وقت جب بھی اسے کوئی موقع ملتا ہے تو موقع کے مناسبت بات کرنا پسند کرتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، اس لیے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ سب سے بڑی بات، جب خدا ہمیں بلاتا ہے تو پھر دیانت داری ہمارے اندر بہت ضروری ہے۔ دیانت داری ہمارے اندر بہت ضروری ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ایک ایسی شخصیت، جیسا کہ جو پہلا حصہ ہے آیت کا کہ میں اپنے طاقت بخشنے والے خدا کا، میرے عزیزوں جب ہم نہمیا کی زندگی پر غور کرتے ہیں، نہمیا پرانے عہد نامہ کے اندر جب ہیکل کو مسمار کیا گیا تو ان کو اسیری میں لے کر، اس ٹائم نبی تھے، ان کے اندر خدا کے خادم تھے، جب انہیں ملک عراق کے اندر غلام بنا کر لے گئے تو پھر ان کے اندر نوجوان شخص خدا کا بندہ نہمیا جو تھا، اسے جب خیال آیا کہ میرے باپ دادا کا شہر، وہ ہیکل جہاں میرا باپ دادا عبادت کرتے تھے، اس کی دیواریں جل چکی ہیں، اس کے حالات برے ہیں، اس شہر کے حالات برے ہیں، اس کے فاٹک جلے ہوئے ہیں، تو اس نے جرأت کی بادشاہ کے پاس جانے کی۔ ایک شخص جس نے جرأت کی بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ بادشاہ صاحب مجھے حکم نامہ دے کہ میں جا کر اپنے شہر کو بحال کر سکوں، میں اپنے شہر کی مرمت کر سکوں، میں اس عبادت گاہ کی مرمت کر سکوں جہاں میرا باپ
खुदा की बंदगी करते थे। तो खुदा अपने लोगों को जब संभालता, अपने लोगों को ताकत बख्शता है। यह बात जो है कि जो मुझे क्या करता है, ताकत बख्शता है। जब ताकत बख्शने वाले की आप गवाही देंगे तो फिर वो आपको बादशाहों के सामने भी बोलने की दलेरी, मेरी तरफ ध्यान दें, वो आपको बादशाहों के सामने बोलने की भी दलेरी देगा। जैसे ही बादशाह उस शख्स का, उस नौजवान का, नेमिया नबी का चेहरा देखता है और चेहरा देखकर कहता है कि नेमिया, आज तू क्या है, बड़ा उदास है, तेरे चेहरे पर क्या है, बड़ी गमगीनी है, मुझे बता क्या बात है। वो कहता है, जब नेमिया की किताब आप पढ़ते तो उसमें आपको ये सारा वाकया मिलेगा। तो वो कहता है कि बादशाह कुछ ऐसी बात नहीं। फिर वो कहता है बादशाह से कि नहीं, मुझे तू बता, आज से पहले तो कभी इतना उदास नहीं हुआ। जब उसके ताकत बख्शने वाले खुदा ने उसके ज़हन में ये बात को डाला तो उसने कहा कि मैं इस वजह से परेशान हूं कि खुदा का घर जो है वो वीरान पड़ा है, वो तबाह बर्बाद पड़ा है। मैं चाहता हूं कि मैं उसे क्या करूं, बहाल करूं। बादशाह ने उसकी बात पर गौर किया। बादशाह ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा कि मुझे चंद नौजवान चाहिए, मेरे साथी चाहिए, ताकि मैं उस घर को जाकर क्या कर सकूं, बहाल कर सकूं। सो खुदा के उस बंदा ने, उस बादशाह ने उसे हुक्मनामा दिया। वो हुक्मनामा लेकर जब निकलने लगा तो बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत की कि नेमिया तू क्या कर रहा है, वो हैकल जिसे पूरे तौर पर जला दिया गया है, हैकल के बर्तन जला दिए गए हैं, तू क्या कर रहा है, कैसे तू बनाएगा। उसने कहा कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो जो ताकत देता है, जब आप उसके नाम से खड़े हो जाएंगे, आप अकेले खड़े होंगे, मगर फिर वो आपको लोग मुहैया करेगा। सो खुदा के उस बंदा के साथ, नेमिया के साथ जब लोग निकले तो उन्होंने आकर जब शहर का हाल देखा तो पहले रोए, आंसू बहाए। फिर उन्होंने उस हैकल की तमीर, शहर की तमीर का काम शुरू किया और खुदा ने उसे पता बख्शी, क्योंकि वो क्या थे, दयानतदार थे। जब दयानतदारी के साथ चलेंगे तो फिर जो हमें ताकत बख्शने वाला हमारा खुदा है, जो हमें जानता है कि हम दयानतदार हैं, तो फिर वो अपनी खिदमत के लिए हमें मुकर्रर करता है। जब वो मुकर्रर करता है तो फिर हम कभी भी चौधरी बनकर काम ना करें। जब हमें खिदमत के लिए चुना जाता है तो सबसे बड़ा नमूना दुनिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह है। जब वो खिदमत के लिए निकला तो यीशु मसीह ने कहीं किसी जगह चुतराहट नहीं दिखाई, बल्कि यीशु मसीह ने एक मजदूर की तरह काम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने एक मजदूर की तरह पहले सब कुछ करके दिखाया, फिर शिगिर्दों से कहा कि तुमने भी ऐसे करना है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का क्या करता हूं, शुक्र करता हूं। वो पौलुस रसूल जिसको 5 मर्तबा कोड़े लगे, कितनी मर्तबा कोड़े लगे, 5 मर्तबा कोड़े लगे खुदा के इस बंदा को, मगर फिर भी वो कहता है कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का क्या करता हूं, शुक्र करता हूं। 5 मर्तबा इसको कोड़े लगे, 3 दफा पैंत लगे और 1 दफा इसे संसार करके मार कर फेंक दिया। फिर भी वो अपने ताकत बख्शने वाले खुदा का क्या करता है, शुक्र करता है। जब आप अपने ताकत बख्शने वाले खुदा की शुक्र गुजारी करेंगे तो फिर जब आप किसी काम के लिए किसी इलाका के अंदर खड़े होंगे, किसी शहर के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, तो खुदा आपको कामयाब करेगा। आज हम जानते हैं वो लोग जिनकी आज मखसूसियत है खिदमत के हवाला से, खुदा उन बेटे बेटियों को खूब खर्च और इस्तेमाल करे, वो सब मजदूर बनकर खेत में काम करने वाले हो, किसी पर हुक्म चलाने वाले नहीं, बल्कि जिस तरह खुदावंद यीशु ने सारे काम खुद किए, यहां तक सबसे बड़ा नमूना उसने दिखाया कि अपने शिगिर्दों के पांव भी धोए। हमने भी दूसरों की क्या करनी है, खिदमत करनी है। फिर जब हम पौलुस रसूल का खत फिलिप्पियों के नाम पढ़ते हैं, उसका 2 बाब पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि सब काम शिकायत और तकरार बगैर
किया करो। जब हम चुने जाते हैं, जब हम मुकर्रर किए जाते हैं, जब खुदा हमें बुला लेता है, तो फिर उसके बाद खुदा का बंदा कहता है कि सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। किसी काम के अंदर किसी के बारे में शिकायत नहीं करनी कि मुझे अकेले को इस काम के अंदर छोड़ दिया गया है या मैं अकेला ही काम कर रहा हूं। नहीं, खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि हर एक दयानतदारी के साथ, जब उसे चुना गया, उसे मुकर्रर किया गया, उसे खुदा ने इस लायक समझा है, तो फिर बगैर शिकायत, बगैर तकरार किए वो उस काम को, उस खिदमत को अंजाम दे। तो फिर खुदा हमें हमेशा की जिंदगी का ताज देगा, क्योंकि मेरा और आपका जिंदगी बख्शने वाला खुदा जो है वो हर तरह से हमारी रहनुमाई करता है। फिर खुदा के कलाम में फिलिप्पियों के खत के 2 बाब के अंदर लिखा है कि तुम दुनिया के अंदर चिरागों की मानद क्या करते हो दिखाई देते हो। दुनिया के अंदर चिरागों की मानद क्या करते हो दिखाई देते हो। यीशु मसीह ने मत्ती 7 बाब के अंदर कहा कि लोग तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करें, तमजीद करें। चिरागों की मानद दिखाई देते हो। और फिर लिखा है कि जिंदगी का कलाम क्या करते हो, पेश करते हो। इस कलाम के अंदर हमेशा की जिंदगी पाई जाती है। सो मेरे अजीजों, हमें सब काम जब हम मुकर्रर किए गए हैं, जब अपना ईमान रखते हैं कि मेरा ताकत बख्शने वाला खुदा जिसने मुझे चुना, मुकर्रर किया है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर सब काम शिकायत और तकरार बगैर करने हैं। किसी के साथ पैसों तकरार नहीं करनी, बल्कि बगैर तकरार किए साफ हाथों को उठाकर दूसरों के लिए दुआ करते हुए खुदावन के कामों में आगे बढ़ना है। कि खुदा यही चाहता है कि हम खुदा की हमेशा क्या करें, तारीफ करें, हम हमेशा खुदावन की बड़ाई करने वाले बने। सो इसके साथ जब दूसरा तिमोथियस देखते हैं, दूसरा तिमोथियस, उसके अंदर खुदा का कलाम हमें सिखाता है। खुदा का कलाम कहता है, खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ क्या कर, दुख उठा। मसीह यीशु का अच्छा सिपाही बन और मेरे साथ दुख उठा। और जब तू दुख उठाएगा, जब तू यीशु मसीह में होकर दुख उठाएगा, तो फिर तू यीशु मसीह के साथ बादशाही भी करेगा। खिदमत का काम आसान नहीं, हम जितने भी करते हैं, खिदमत समाजी हो या रूहानी हो, जैसी भी, या एक घराना के अंदर आपका खिदमत का काम है, तो आसान काम नहीं। इसमें बहुत से दुख, बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियां हमें देखने को मिलती है और बहुत से दुख हमें उठाने को मिलते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पौलुस फिलिप्पियों के खत के 2 बाब के अंदर कहता है कि सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, और दुनिया के अंदर बोले और टेढ़े और कजरू लोगों के अंदर बेनुक्स खुदा के फर्जंद बने रहो। बेनुक्स खुदा के फर्जंद बनना है। दुनिया के अंदर बेनुक्स बनकर काम करेंगे तो फिर कोई भी आप पर उंगली उठाने वाला नहीं होगा। इसी के तिमोथियस के खत के अंदर जब देखते 3 बाब के अंदर, वहां खिदमत के हवाला से लिखा है कि जब खिदमत के लिए तू चुना जाता है, तो सबसे पहली बात तो बेइल्जाम होना चाहिए, तुझ पर कोई इल्जाम लगाने वाला ना हो। उसके बाद नशावर ना हो और गुस्से वाला ना हो, मारपीट करने वाला ना हो। फिर हम खुदा की खिदमत क्या कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। याकूब के खत के अंदर लिखा है कि जो गुस्सावर है वो कभी भी खुदा का काम नहीं कर सकता। खुदा का काम करने के लिए आपने यीशु मसीह को, जो हर तरह से हमारे लिए एक नमूना है, हाँ वो हलीमी का समझे, फरोतनी का समझे, मोहब्बत का समझे, वो नमूना खुदावंद यीशु मसीह है। हमें उसको तकते रहना है, ताकि उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करेंगे, तो फिर हम हमेशा की जिंदगी का ताज पाने वाले बनेंगे। इस दुनिया के अंदर जो टेढ़ी है, जो कजरू लोग बड़े बुरे हैं, इस दुनिया के अंदर, बुरी दुनिया के अंदर रहते हुए आपने वो अच्छे काम करने हैं ताकि लोग कहें कि ये मसीह का बंदा और मसीह की बंदी है। ये कब होगा, जब उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। तो हमारी मरकजी आयत क्या थी, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह का
शुक्र करता हूं जिसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए क्या किया है, मुकर्रर किया है। जब आप अपने अंदर से आयत को निकालते हैं तो फिर इब्लीस शर्मिंदा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि तालियां बजाई जाओ तो इब्लीस शर्मिंदा होगा, तालियों से शर्मिंदा नहीं होता। इब्लीस तब शर्मिंदा होता है जब कलाम आपके अंदर से निकलता है। कलाम आपके अंदर से निकलेगा तो फिर इब्लीस को मुंह की खानी पड़ेगी। खाली तालियां तो बहुत से मजमे ऐसे होते हैं वहां भी तालियां बजती हैं जहां इब्लीस के लिए तालियां बजाई जाती हैं। मगर हमें इन बातों पर गौर करना है जो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का कलाम ये कहता है कि जब तुम्हारे अंदर से कलाम निकलेगा तो फिर इब्लीस शर्मिंदा होगा। इब्लीस आपसे आकर कह दे कि भाई आप इबादत इतनी गर्मी के अंदर कर रहे हो तो आप परेशान हो रहे हो, क्या फायदा आपको ऐसी इबादत का। तो ऐसे मौका पर हमने उसको जवाब देना है कि लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के क्या है, गरीब है। जो सताए जाएंगे वो क्या होंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे, वो खुदा की बादशाही के अंदर जाएंगे। तो हमें इन चीजों की परवाह नहीं करनी। हमें सब काम शिकायत और तकरार बगैर करने हैं। हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। जब उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो फिर हमेशा की जिंदगी पाने वाले बनेंगे। खुदा ने यीशु मसीह ने कहीं ये हुक्म नहीं दिया कि आप जब खिदमत के लिए चुने जाते हो तो आप चौधरी बनकर काम करो, दूसरों को हुक्म दो। ऐसा कहीं नहीं, बल्कि ये कहा है कि हम सब खुदा के खेत में क्या है, मजदूर हैं। हाँ, कोई मुकर्रर होता है या नहीं, हम सब जितने काम करते हैं हम सब खुदा के खेत में अंदर क्या है, मजदूर है। और जब मजदूर बनकर काम करेंगे तो फिर किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, क्योंकि हम जब देखते हैं फैक्ट्री के अंदर अगर 500 मजदूर काम कर रहे हैं तो वो काम करते हैं तो किसी एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाते कि इसने काम कम किया, मैंने ज्यादा किया। ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि उनको उनकी उस मजदूरी का क्या मिलता है, मुआवजा मिलता है। इसी तरह जब हम खुदा के खेत में काम करेंगे तो ईमानदारी से, दयानतदारी से करेंगे, फिर खुदा उसके बदला में हमें हमेशा की जिंदगी देगा। हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे के पास है। और यूहन्ना के खत के अंदर 5वें बाब के अंदर लिखा है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास हमेशा की, और जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं। तो आए आज मिलकर जो ताकत बख्शता है, जिसने हमें दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए चुना, और फिर वो कहता है कि सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। इस टेढ़े और कजरी लोगों के अंदर खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो। खुदा के बेटे और बेटियां बेनुक्स बनो। आपके अंदर किसी किस्म का ऐब, आपके अंदर किसी किस्म की शरारत ना हो, क्योंकि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यूहन्ना के खत के 3 बाब के अंदर लिखा है कि खुदा का तुख्म जो उसके बेटे और बेटियां हैं उनके अंदर बना रहता है। वो झूठ नहीं बोलते, वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि खुदा का तुख्म उनके अंदर है। झूठ बोलने वाले किससे हैं, अपने बाप इब्लीस से। यूहन्ना की इंजील नावा बाप पढ़े, यूहन्ना का खत पढ़े तो वहां खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि झूठ बोलने वाले अपने बाप इब्लीस से हैं। खुदा के बेटे और बेटियां झूठ नहीं बोलते, क्योंकि खुदा का तुख्म उनमें क्या करता है, बना रहता है। वो झूठ बोल ही नहीं सकते क्योंकि खुदा से पैदा हुए। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें जब खिदमत के लिए चुना जाए, मुकर्रर किया जाए, खा वो क्वायर हो, यूथ हो, खा वो डीकन की खिदमत हो, एल्डर की हो, पासबान की हो, मुबशर की हो, किसी भी तरह की खिदमत हो, तो उसके अंदर सब काम शिकायत और तकरार बगैर करें। हवाले इसलिए नहीं मैं पढ़ा रहा, ज़बानी आपको बता रहा हूँ। फिलिपियों 2 बाब उसकी 14 में से पढ़ेंगे तो आपको सारा मंजर मिलेगा। फिर पहला जो तीमुथियुस पढ़ा है उसका पहला बाब 12वीं आयत, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब है, उसके अंदर लिखा है कि तू क्या है, जो अक्सर हम एक हवाला सुनते हैं तीसरे की इबादत पे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। कितनों ने सुनी ये बात?
اب میں نے اپنی دوڑ کو کیا کیا ہے؟ ختم کیا ہے۔ وہاں ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بندہ شراب پی کے مر جاتا ہے تو ادھر تک نہیں ہوتا ہے کہ میں اچھی کشتی، غلط۔ پولیس رسول جس نے میں نے پہلے بتایا کہ 5 مرتبہ کوڑے کھائے، 3 دفعہ بیت لگے، مارا گیا، سنسار کیا گیا، وہ کہتا ہے کہ میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا۔ پوری بات، میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو کیا کیا ہے؟ ختم کیا ہے۔ اب وہ سیرا میرے لیے کیا ہے؟ تیار ہے، جو خدا ہر ایک اپنے محبت کرنے والے کو دے گا۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں، جیسا سیرا اس نے پولیس کو دیا، آج ان کو بھی دے گا جو اس کے کلام پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ خدا بن یسوع مسیح کا ارشاد اعظم کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اسے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ تو یہ سب کے لیے بات ہے، کسی خادم کے لیے آپ انجیل مقدس پڑھیں، چاروں انجیلوں کے اندر پڑھیں، کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی کہ یہ خادم کا کام ہے۔ کیوں پادری صاحب یہ بات نہیں لکھی؟ یہ ہر ایک کے لیے حکم ہے جو خدا کے کلام کو سنتا اس پر عمل کرتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کریں کہ خدا تو جو مجھے طاقت بخشتا ہے، مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے چنا مقرر کیا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں سب کا جو ہے بغیر شکایت، بغیر تکرار کے کروں۔ میں مسیح یسوع کے اچھے صفائی کی طرح مسیح یسوع میں دکھ اٹھاؤں تاکہ اس کے ساتھ بادشاہی بھی کر سکوں۔ سب دعا مانگے جتنے بھی ہم موجود ہیں۔